Good morning, students. Today we will discuss about energy efficient machines subject. And first of all, the unit 1, that is the introduction to energy efficient machines and its requirement and its needs. So let's start one by one. Yes. First of all, what is this energy efficient machine? Simply a machine equipment which provides us best output among all other machines. Best output means with the utilization of minimum input they are providing us maximum output. Okay, minimum input means they are using less energy, and energy efficient means less energy with large output. Okay, energy efficient machines are higher motors or machines with increased reliability and longer manufacturer warranties. These machines uses less input power to provide us high output, and obviously it provides some saving in downtime, saving in their running time. Always it provides us a proper replacement with previous machines, and also it saves the maintenance cost because of its energy efficient behavior. Lastly, it also provides us reduced operating cost. These are some of the features under energy efficient machines. And why we need this energy efficient machine? Because all of these machines have higher efficiency as per previous or simple machines. Replacement of machines is required, in which we have a minimum consumption and which provides us the maximum output. The main requirement, the main need of energy efficient machine is the working life. Working life of these appliances, of these energy efficient machines, are increased by using their applications. It also prevents us from passively consuming of electricity, because energy efficient machines always require less input or less electrical power supply. What is this energy cost? Energy cost is simply monetary and non-monetary cost associated with energy consumption, production, transmission, etc. Simple. On the basis of this energy cost, we have a word two-pot tariff. There are many type of tariffs in our daily life, but the main one is two-part tariff. First of all, what is this tariff? Tariff is simply the rate at which the electrical energy is supplied to consumer, and consumer is paying for that. This is known as tariff. Rate at which electrical energy is supplied to a consumer and consumer is paying for that. The cost of producing this electricity always depends upon the magnitude of electricity consumed by consumer with the use of load. कितना हम लोड यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से जो कॉस्ट जो है वो डिसाइड होती है. द टैरिफ फिक्सेशन हैज़ टू बी गिवन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स. 3 तरह के कंज्यूमर्स इसमें इंडस्ट्रियल हैं, डोमेस्टिक हैं एंड कमर्शियल हैं, और तीनों के लिए डिफरेंट टाइप्स की लोड कैपेसिटीज़ होती है. हेंस टैरिफ जो है वो तीनों के लिए डिफरेंट होगा. टू पार्ट टैरिफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है इसमें. टू पार्ट टैरिफ. What is tariff? So simply the rate of electricity energy which is charged on the basis of maximum demand of a consumer and the unit consumed by that consumer. It has two parts. नाम से पता लग गया ना कि टू पार्ट टैरिफ है. पहला पार्ट है फिक्स चार्ज, जो कि बिना किसी कंजप्शन के पे करना ही करना है, चाहे आप यूज़ करो चाहे आप ना करो. सेकेंड इज रनिंग चार्ज. दिस इज पर यूनिट चार्ज, कि आपने कितने यूनिट यूज़ किए हैं मल्टीप्लाई बाय दैट चार्ज, और दोनों को प्लस करके बनता है टोटल चार्ज इन ए इंडस्ट्री. द फिक्स चार्ज जो है डिपेंड्स अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर. कितनी डिमांड है उसके हिसाब से फिक्स चार्ज जो है वो डिसाइड होता है. वाइल द रनिंग चार्ज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर. अब इसको आप मैथमेटिकली लिखना चाहोगे तो टोटल चार्ज किसके बराबर होगा? दिस बी मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट चार्ज प्लस सी मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट किलोवाट आवर जो इसका कंजप्शन है.
B इज द चार्ज पर यूनिट किलोवाट ऑफ मैक्सिमम डिमांड, ये फिक्स वाला है, एंड C इज द चार्ज ऑफ किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, दिस इज रनिंग चार्ज। तो इन दोनों को आप प्लस करके जो बनेगा दैट इज हमारे पास टोटल चार्ज ऑफ ए टू पार्ट टैरिफ। एंड दिस टाइप ऑफ टैरिफ इज मोस्टली एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हु हैव एप्रिशिएबल मैक्सिमम डिमांड। एडवांटेज क्या है इसके टू पार्ट टैरिफ के कि ईजिली हम इसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि बिकॉज दो पार्ट ही हैं, एक हमारा फिक्स्ड पार्ट है, एक हमारा वेरिएबल जो कि रनिंग पार्ट है। इट रिकवर्स द फिक्स चार्ज विच डिपेंड्स अपॉन द मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर एंड आल्सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट कंज्यूम्ड। दीज आर द सम ऑफ इट्स एडवांटेजेस। यहाँ जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड मीन्स फिक्स चार्ज की बात की है कि जो फिक्स चार्ज है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट कंज्यूम्ड। डिसएडवांटेज भी इसका सबसे बड़ा यही है कि जो फिक्स चार्ज है जो कि हम कंज्यूम नहीं भी कर रहे वो हमें पे करना पड़ता है। ओके, द कंज्यूमर हैव टू पे द फिक्स चार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनर्जी कंज्यूम्ड एंड देयर इज ऑलवेज एरर इन असेसिंग द मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर। तो ये था हमारे पास एक टू पार्ट टैरिफ। देन एनर्जी कंजर्वेशन। व्हाट इज दिस एनर्जी कंजर्वेशन? एनर्जी को सेव करना, बचाना फॉर फर्दर यूज़। अब हमें पता है कि हमारे पास जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो दो तरह के हैं, रिन्यूएबल हैं एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल जो विद टाइम कभी ख़त्म ही नहीं होते, और नॉन रिन्यूएबल जिसकी कंजप्शन करने से वो विद टाइम ख़त्म हो सकते हैं। तो इस टाइप के भी एनर्जीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है हमने। तो एनर्जी कंजर्वेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ डिक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी यूज फॉर द सेम क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। इट इंक्लूड्स बिहेवियर दैट रिजल्ट्स इन द यूज ऑफ लेस एनर्जी एंड इट ऑलवेज फोकस ऑन बिहेवियर ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद द एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन? बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं हमें, क्यों? ताकि हम अपने फ्यूचर के लिए इसको सेव कर सकें। जहाँ रिक्वायरमेंट है वहीं ही हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। ओके, तो टू इम्प्रूव फर्स्ट फॉर इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर बाय इंस्टॉलिंग कैपेसिटर्स और अदर इलेक्ट्रिकल पैरामीटर टू रिड्यूस पीक केवीए वैल्यू एंड पीक लॉसेस। हैंस पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं एंड ऑलवेज इट सेव्स just a minute, and it always saves sufficient amount of energy. Therefore energy conservation in industries are required. Okay, hope कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो।